নমস্কাৰ। সো আজি ক্লাস 11 আমি ডিমান্ড এনালাইসিস বা চাহিদা বিশ্লেষণ চেপ্টাৰটো লৈ পেলাই ডিসকাশন কৰিম। ক্লিয়াৰ? তাত আমি অলৰেডি কেইটামান কনসেপ্ট ডিসকাশন কৰিছো। ক্লিয়াৰ? সো আজি আমি এটা স্পেশাল টপিক লৈছো চাহিদা চেপ্টাৰটোৰ লগত। ক্লিয়াৰ? মই লিখি থৈছো ৰিজনস ফৰ ল অফ ডিমান্ড। ক্লিয়াৰ? সো ৰিজনস ফৰ ল অফ ডিমান্ড জানাৰ আগত তুমি এইটো বস্তু জানিব লাগিব, what is the actual statement of the law. Clear? So law of demand বা চাহিদাৰ বিধিত কি কোৱা হৈছে। Clear? So reasons for the law of demand to লগত সেই কনসেপ্টটো ইনভলভ হৈ আছে। Okay, law of demand states that when in a particular situation price of one commodity increases, then definitely demand for that goods decreases. Okay, at the same time other things remains constant. Clear? Means আনান অৱস্থা একে থাকি কোনো এটা দ্ৰব্যৰ দৰ যদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়ালে চাহিদা ডেফিনেটলি হ্ৰাস পায়। ক্লিয়াৰ? সো যদি হেতুয়ে হয় তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি ডিমান্ড কাৰ্ভডাল মিন্স চাহিদা ৰেখাডাল অলৱেজ স্লোপস ডাউনৱাৰ্ডস ফ্ৰম লেফট টু ৰাইট মিন্স চাহিদা ৰেখাডাল সদায় বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নিম্নগামী হ'ব। ক্লিয়াৰ? তে কুৱেশ্যন হৈছে সেই ল অফ ডিমান্ড বা চাহিদাৰ বিধিটো যদি প্ৰযোজ্য হয় তেতিয়ালে চাহিদা ৰেখাডাল সদায় বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নিম্নগামী হ'ব। মিন্স ডিমান্ড কাৰ্ভ অলৱেজ স্লোপস ডাউনৱাৰ্ডস ফ্ৰম লেফট টু ৰাইট ইফ দ্য ল অফ ডিমান্ড ইজ satisfied. Means law of demand or কথাটো যদি applicable হয়, apply হয় তেতিয়ালে ডিমান্ড কাৰ্ভডাল ডেফিনেটলি ডাউনৱার্ড স্লোপ হ'ব ফ্ৰম লেফট টু ৰাইট। ক্লিয়াৰ? এটা কুৱেশ্যন হৈছে এই ল অফ ডিমান্ড বা ডিমান্ড কাৰ্ভডাল ডাউনৱার্ড স্লোপ হোৱাৰ আৰৰ একচুৱেল ৰিজনছবিলাক কি। ক্লিয়াৰ? সো তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি সেইটো লৈ পেলাই ডিছকাশ্যনটো কৰোঁ। Reasons for the law of demand যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে already we know demand curve always slopes what? Demand curve ইয়াতে মই ড্ৰ কৰিছো demand curve always slopes what? This is demand, this is price. Okay, x axis ত মই demand দেখুৱাইলো, y axis ত price. So this is definitely what curve? Demand curve. Okay, so demand curve always slope downward from left to right. Clear? The question hol reasons for law of demand. The reason jodi soa tityahe number 1 reasons hoise law of diminishing. Law of what? Diminishing. Law of diminishing marginal utility. Means law of diminishing marginal utility is one of the reasons for the demand curve downward slope. Means demand curve dal downward slope और एटा कारण होइसे क्रमह्रासमान प्रांतिक उपयोगितार विधि। क्लियर होल? मैं बोलना चाहता हूँ जो डिमांड कर्व होता है ना वो डाउनवर्ड स्लोप जो होता है ना उसके पीछे रीजंस ये है बिकॉज लॉ अप्लाई हुआ। लॉ अगर अप्लाई हुआ इसका मतलब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप हुआ। तो कारण क्या है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने का कारण क्या है वही तुमको पूछा। अगर कारण पता चल जाएगा तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप भी पता चल जाएगा। क्लियर? तो उसका पहला कारण हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये चीज़ बोला गया कोई एक चीज़ अगर तुम कंटिन्यूस प्रोसेस से अगर कंज्यूम करते रहोगे ना तो वही चीज़ का एडिशनल यूनिट से तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर? तो मान लो कोई एक चीज़ का प्राइस 10 रुपया, तो इन दैट सिचुएशन तुम डिमांड कर रहे हो 2 यूनिट, मतलब at ₹10 यू परचेज 2 यूनिट। क्लियर? अभी मान लो तुमको 3 यूनिट या 4 यूनिट चाहिए, मान लो तुमको 4 यूनिट चाहिए वही चीज़, लेकिन अगर 10 रुपया मार्केट में प्राइस है तो डेफिनेटली तुम 4 यूनिट्स नहीं खरीदोगे क्योंकि तुमको पता है 4 यूनिट्स खरीदोगे तो एडिशनल 2 यूनिट से तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी घट जाएगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा तो डेफिनेटली यू एज ए कंज्यूमर नॉट विलिंग टू पे प्राइस 10, मतलब तुम 10 रुपीज़ में 4 यूनिट नहीं खरीदोगे क्योंकि एडिशनल 2 यूनिट से तुम्हारा एमयू घट रहा है। तो इसलिए शायद तुम 4 यूनिट तभी खरीदोगे जब प्राइस घटेगा। इसका मतलब ये हुआ एमयू अगर घट रहा है तो प्राइस यू आर विलिंग टू पे ऑल्सो लेस, मतलब एमयू जितना घटेगा तुम्हारा
प्राइस पे करने का मन उतना ही कम करेगा। क्लियर? इसलिए शायद प्राइस घटेगा तभी तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस घटने से अगर डिमांड बढ़ता है तो तुम्हारा परचेज बढ़ेगा, तो एडिशनल यूनिट का एमयू भी तो घटेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जितना यूनिट तुम ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना एमयू घटेगा। अगर एडिशनल 2 यूनिट से तुम्हारा अगर एमयू घट रहा है तो तुम ज़्यादा प्राइस 10 रुपीज़ क्यों पे करोगे? क्लियर? इसलिए शायद प्राइस अगर घटेगा, मान लो 5 रुपया प्राइस हो गया, तो 5 रुपया में प्राइस घटेगा तब ना तुम जाके ज़्यादा खरीदोगे, बिकॉज वॉट एवर प्राइस यू आर रेडी टू पे, दैट प्राइस ऑलवेज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स। ओके, मतलब जितना प्राइस तुम देने के लिए रेडी हो वही प्राइस उस कमोडिटी का एमयू का समान होगा। मतलब प्राइस नहीं घटा, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है तो डेफिनेटली यू आर नॉट रेडी टू पे दैट प्राइस। क्लियर? मतलब प्राइस ज़्यादा दे रहे हो लेकिन तुम्हारा एमयू घट रहा है तो तुम्हारा लॉस होगा, क्योंकि एमयू घट रहा है उसका अगेंस्ट में तुम प्राइस ज़्यादा दे रहे हो। क्लियर? इसलिए तुम ज़्यादा अगर खरीद रहे हो तो एमयू अगर घट रहा है तुम्हारा तो डेफिनेटली प्राइस भी घटना चाहिए। इसलिए तो प्राइस घटने से ही डिमांड बढ़ता है, क्योंकि प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा तो एमयू भी घटेगा, और एमयू अगर घट रहा है तो प्राइस डेफिनेटली घटेगा। मतलब मुझे बोलने का मतलब ये हो रहा है, मतलब ऑलवेज प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एमयू एक्स, ये चीज़ होना पड़ेगा। इसलिए शायद प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। क्लियर? अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो वही जो प्राइस घटा वही इक्वल हो जाएगा एमयू के साथ। क्लियर? लेकिन अगर प्राइस घटा तुम्हारा डिमांड नहीं बढ़ा तो डेफिनेटली क्या होगा, योर एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस। क्लियर? सो इसलिए शायद कंज्यूमर ज़्यादा खरीदता है अगर प्राइस घटता है। क्लियर? ये हो गया पहला रीजन, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद भी ये भी तुम समझ लो, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व कंज्यूमर ऑलवेज गेट्स इक्विलिब्रियम वेयर एमयू एक्स इज इक्वल टू पीएक्स, ये चीज़ होगा। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये हो गया सब्सटीट्यूशन। Substitution what? Substitution effect. Clear? So substitution effect मतलब जो सब्सटीट्यूट गुड्स होता है ना, उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट देखना है। मान लो पेप्सी का प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है? तो इन दैट सिचुएशन तुम पेप्सी खरीद रहे हो 2 यूनिट। क्लियर? लेकिन उस टाइम अगर पेप्सी का प्राइस घट जाएगा 10 से 5, तो तुम कंपेयर करोगे पेप्सी के साथ कोको कोला, क्योंकि कोको कोला से पेप्सी का प्राइस ज़्यादा घटा। इन दैट सिचुएशन पेप्सी इज चीपर देन कोको कोला, मतलब कोको कोला के जगह तुम शायद यही प्रेफर करोगे, क्या कोको कोला कॉस्टलियर है, पेप्सी चीपर है। अगर कोको कोला कंज्यूम करोगे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन पेप्सी अगर कंज्यूम करोगे तो कम पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि पेप्सी का प्राइस ही घटा ना। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन यू सब्सटीट्यूट व्हाट? 2 गुड्स। क्लियर? मतलब एक्स वाई गुड्स में अगर देखा जाए तो यू आर रेडी टू कंज्यूम मोर पेप्सी रादर देन कोको कोला, बिकॉज इन दैट सिचुएशन पेप्सी चीपर देन कोको कोला। क्लियर? सो इसलिए तुम कोको कोला के जगह ज़्यादा पेप्सी प्रेफर करोगे। इसलिए शायद पेप्सी का प्राइस घटेगा तो डेफिनेटली पेप्सी का प्राइस घटेगा तो पेप्सी का डिमांड भी बढ़ेगा। बिकॉज वाई? पेप्सी का डिमांड इसलिए बढ़ा बिकॉज इन दैट सिचुएशन तुमने कोको कोला के प्लेस में पेप्सी को लाया। बिकॉज कंपेयर टू 2 गुड्स यू जस्ट थिंक which goods is costlier, which goods is cheaper। जो तुमको चीपर लगा वही तुमने ज़्यादा खरीदा, क्योंकि ये सिचुएशन में पेप्सी का प्राइस घटा तो पेप्सी चीपर हो गया कोको कोला से, तो डेफिनेटली कोको कोला का डिमांड तुम घटाओगे, पेप्सी का डिमांड बढ़ाओगे। ये जो सिचुएशन मैंने बोला ना, दिस इज सेड टू बी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्लियर? सो इन दैट रीजन ऑल्सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। क्लियर? ये हो गया दूसरा रीजन। थर्ड रीजन जो है ना, दिस इज व्हाट? इनकम इफेक्ट। व्हाट इफेक्ट? इनकम इफेक्ट।
इनकम इफेक्ट जो कंसेप्ट है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है। क्लियर? सो इनकम इफेक्ट कंसेप्ट कैसा है, मान लो एक सिचुएशन पकड़ लो, तुम्हारा मनी इनकम एट गिवन टाइम पीरियड मान लो 2000 रुपीज़, मतलब योर मनी इनकम कितना, योर मनी इनकम मान लो तुम्हारा कितना 2000 रुपीज़। इस टाइम पे मान लो कोई एक चीज़ का प्राइस 10 रुपया, तुम 2 यूनिट्स खरीद रहे हो, तो 2 यूनिट्स अगर तुम खरीद रहे हो, पर यूनिट का प्राइस 10 है, तो टोटल तुम्हारा खर्चा हो रहा है 20 रुपीज़, तब तुम्हारा मनी इनकम 2000 था। क्लियर? लेकिन वही सिचुएशन में तुम्हारा मनी इनकम ऑल्सो रिमेन्स फिक्स्ड 2000 ही है, लेकिन मान लो प्राइस ऑफ दैट गुड्स डिक्रीज हुआ, तुम्हारा इनकम 2000 ही है, लेकिन वही चीज़ का प्राइस अगर 10 से 5 हो जाएगा, तो डेफिनेटली तुम 2 यूनिट खरीदोगे तो 5 × 2 तुम्हारा 10 रुपीज़ खर्चा होगा, लेकिन पहले 2 यूनिट में तुम्हारा 10 रुपीज़ करके 20 खर्चा हुआ था। लेकिन अभी तुम अगर 2 यूनिट ही अगर खरीदोगे तो 5 रुपीज़ करके 10 रुपीज़ खर्चा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा हाथ में जो मनी इनकम है ना, वो ज़्यादा सेव हो जाएगा, और तुम्हारा जो कैपेसिटी टू परचेज मतलब परचेजिंग पावर जो है ना, वो बढ़ जाएगा। बिकॉज प्राइस घटने से कंज्यूमर का मनी इनकम दो रिमेन्स फिक्स्ड बट रियल इनकम इंक्रीजेस। इफ रियल इनकम इंक्रीजेस दैट मीन्स कंज्यूमर नाउ परचेज मोर गुड्स, बिकॉज वाई, उस कंज्यूमर का परचेजिंग पर बढ़ गया, और अगर कंज्यूमर का परचेजिंग पर बढ़ेगा इसका मतलब वही चीज़ का प्राइस घटा। That situation is said to be real income increases. रियल इनकम बढ़ने का मतलब परचेजिंग पर बढ़ना। तो अगर तुम्हारा गिवन मनी इनकम से अगर परचेजिंग पर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली तुम मन करोगे ना ज़्यादा खरीद लेता है अभी, क्योंकि प्राइस घट गया, पैसा भी थोड़ा सेव हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा भी खरीद सकता है। इसका मतलब 5 रुपीज़ में डेफिनेटली तुम 4 यूनिट खरीदोगे। पहले 10 में 2 खरीदा तो 20 रुपया गया, अभी 5 में 4 यूनिट खरीद रहे हो तो तुम्हारा 20 रुपीज़ ही जाएगा ना। क्लियर? सो 10 × 2 20, 5 × 4 ऑल्सो 20, तो पैसा तो तुम्हारा सेम ही जा रहा है ना। पहले 2 यूनिट में जितना जा रहा था अभी 4 यूनिट में उतना ही जा रहा है। क्लियर? इसलिए शायद कंज्यूमर ने सोचा रियल इनकम बढ़ गया ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ परचेजिंग पावर। क्लियर? तो डेफिनेटली कंज्यूमर ट्राई टू परचेज मोर ऑफ दैट गुड्स इफ प्राइस डिक्रीजेस। क्लियर? तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने बोला ना, दीज आर द रीजंस रिलेट्स टू द लॉ ऑफ डिमांड। फॉर दैट रीजंस ऑल्सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। वन इज law of diminishing marginal utility, second one is substitution effect, third one is इनकम इफेक्ट। क्लियर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये चीज़ बोला गया, कोई एक चीज़ अगर तुम ज़्यादा खरीद रहे हो तो उसका MU घटेगा, अगर MU घटेगा तो यू आर डेफिनेटली पे लेस प्राइस। इसलिए शायद लेस प्राइस में डिमांड ज़्यादा होता है, और कंज्यूमर ट्राई टू इक्वलाइज MUX = PX। क्लियर? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में ये चीज़ बोला गया, कोई एक चीज़ अगर खरीद रहे हो तुम, उसका प्राइस अगर घट जाएगा, उसका सब्सटीट्यूट के कंपेयर करो तो सब्सटीट्यूट रूट्स के हिसाब से अगर कोई एक गुड्स का प्राइस घट गया, पेप्सी कोको कोला मान लो, तो अगर कोको कोला की जगह पेप्सी का प्राइस घट गया तो कॉस्टलियर हो जाएगा कोको कोला, पेप्सी चिपर होगा, तो कंज्यूमर डेफिनेटली परचेज कौन सा, पेप्सी जो चिपर है। तो कोको कोला के जगह सब्सटीट्यूट किया किसको, पेप्सी को। क्लियर? वो चीज़ हर कंज्यूमर करता है, जो चिपर लगेगा वही खरीदेगा। क्लियर? और इनकम इफेक्ट में क्या चीज़ आया, अगर प्राइस घटेगा तो कंज्यूमर का मनी इनकम रिमेन्स सेम रहेगा, तो परचेजिंग पर बढ़ेगा मीन्स रियल इनकम बढ़ेगा। अगर रियल इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर परचेज मोर गुड्स व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। क्लियर? सो फॉर दैट रीजंस फाइनली डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। लॉ ऑफ DMU, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड फाइनली इनकम इफेक्ट। क्लियर? क्लियर? तो फाइनली ये जो तुमको सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट मिला ना, ये दोनों को एक साथ तुम बोल सकते हो व्हाट, प्राइस इफेक्ट। मतलब प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज सम ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। मतलब प्राइस इफेक्ट नथिंग बट सम ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। मतलब सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट दोनों को जोड़ के होता है प्राइस इफेक्ट। क्लियर हो गया? थैंक यू।